वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ रहे हैं। इस दौरे में इनकी मुलाकात सदर जो बाइडेन और अमेरिकी वजीर खारजा से हुई। ये मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे न्यूयॉर्क से जुड़ी थी, जहां पर उन्होंने जनरल असेंबली से खिताब किया और जो बाइडेन से खुसूसी अशाइये पर मुलाकात की। इस दौरे से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान ज़हूर रजा। इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार रॉबर्ट जिमरमैन, जो डेमोक्रेट टिकट पर कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद और दीगर सरकर्दा पाकिस्तानी अमेरिकन शख्सियात। इससे पहले कि हम रॉबर्ट जिमरमैन समेत मेहमानों से बात करें, पहले हम आपको दिखाते हैं कि APPAC की जानिब से न्यूयॉर्क में हुई फंडरेजिंग से खिताब में खुद रॉबर्ट जिमरमैन का क्या कहना था। I can assure you, no organization screened me more carefully than APPAC did. We had a number of them that reach your credit. And you're all much taller than you are in Zoom, I might add that. But certainly, Dr. Ahmad, thank you so much for having me at your home again. I'm grateful to you, Saeed, for your leadership. And of course, Mohammed has been with me through our entire venture since it began in January. And I'm very grateful to all of you for the attention you're showing at such an important time to this congressional race. Because it's a very important time for the Pakistani community, both here in America and of course to the country itself. It's a very critical time for Pakistan itself. And the role of your member of Congress is going to be very defining in terms of the kind of support both you're going to have locally, you're going to have throughout our country, and also throughout the nation. I come into this race at this stage now. I'm very grateful and honored by having been the nominee, won the nomination August 23rd. It was a 5-person race. Very proud to say we won in every part of the congressional district. And that was important because after our win, it became very unified. All of the candidates who ran endorsed me. Our incumbent Congressman Tom Swazi endorsed me as well. And we're moving forward as a united front. And that's very important because this is a district which historically has been a swing district. We did well enough in the primary, actually, that we got a lot of momentum. We went from being what was called a toss-up seat to one that's now rated by the Cook Political Report as leaning Democratic. Nate Silver's analysis rated us as a district that went from slightly favored to favored Democratic. So we have the momentum moving in our direction. But that's why your gathering tonight is so important. Because I was saying to some of you before, that was the time when we launch our media campaigns, launch our direct mail, reach out directly to the voters. It's very critical with 6 weeks to go. So your support and your guidance, your advice is all so important right now. And for me, this is a very important time because it's really a culmination of my life's mission. Since I was an intern on Capitol Hill for, at that point, Lester Wolf as a kid, I became later a senior member of his congressional staff, worked for members of Congress from our congressional district. This is a district I've lived in since I was 9 years old. Went to our public schools, built my business here, now in its 33rd year. Small business in marketing, advertising, and communications. Became elected to the Democratic National Committee, and so I bring into this race a strong background in this district, working with the different communities of our district, but also a strong background working with national political leadership, be it through the Democratic National Committee or with congressional leaders. I hope to bring that network and experience to this work, which I think is so important. Let me just say to you, first, as a member of Congress, I'm given the privilege to serve. Let me just say what I said to Dr. Ahmad, I'm not going to wait to be sworn in. I'm going to go to Pakistan immediately. It is one of the great international crises we have seen in, I'd say, the past 50 years. And we have to keep the world and our country's attention on it. I mean, it's 14% of the population that I've read, 33 million lives. The tragedies and the are just you can't even calculate, just incalculable how large these tragedies are. And the traumas it's going to create for generations of people in Pakistan. So I believe our government has got to keep the focus on this. We've got to keep our relief together on this because frankly,
Pakistan's survival and their ability to survive this terrible experience is critical to our country and the world. And so I'll be there advocating for aid, making sure the world does not forget. I've been on a commentator on the networks for many years, and I'll be talking about this on the networks for quite some time. I also want to say that you made a very important point, Dr. Ahmad, that I want to focus on for a second. I've talked about this, talked to Muhammad, I've talked to Saeed about this, and that is my congressional office is going to look like our congressional district. I want to make sure members of the Pakistani community are included both in my congressional staff, on our advisory committees that we set up. Ooh. I think it's very important. That's huge. No, Thank you. I mean, this is very important because I have to tell you something. As I mentioned before, when I was a kid, I worked in a congressional office. Nobody goes to a Congress member's office for a good time. You go there because you got a problem. Maybe your Social Security check didn't arrive. Maybe you're not getting your veterans assistance that you need. Maybe there's an immigration problem where you're getting lost in the system. So you have to go to that office and you have to make sure when you're in that office, there are people there that understand your situation, understand your story, can relate to you, and the constituents comfortable talking to them. That's very important. And so we're going to make sure we have, not just on the congressional staff, but on the various committees that we establish. We're going to make sure we have members of our community on the Small Business Advisory Committee, on military service, and other committees that members of Congress establish. It's very critical. And this is, I think, part of the ongoing, I bring a very ongoing experience of serving. I bring a different experience from a lot of folks who go to Congress. Coming out of the small business community, I certainly see firsthand what economic pressures can do for families, for our economies, for small businesses. And that's something I'm going to be very, very focused on. We're going through a difficult period right now. We're going to pull out of it. It's a difficult time, and frankly, so many people don't realize the role government can play in helping small businesses. सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार रॉबर्ट जिमरमैन से। कांग्रेसमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम। हाउ डू यू सी द डेवलपमेंट ऑफ रीसेंट मीटिंग्स ऑफ बाइडेन शहबाज एंड ब्लिंकन बिलावल, and what would you do to strengthen Pak-US relations if you get elected to Congress? Very encouraging and important to see the highest levels of our government meet with the highest levels of the Pakistani government. It's very encouraging. It speaks to the fact that, in fact, the United States is committed to making sure that Pakistan is provided with the proper and full relief to navigate through this just tragic, cataclysmic crisis they face through the massive flooding. It's a recognition that the climate crisis is very real, and countries like Pakistan are impacted, and our world's national security is impacted by the climate crisis. So seeing the United States government at its highest levels meet with the Pakistani government at the highest levels can only lead to, I think, better dialogue, more open dialogue, and greater opportunities to provide relief for the Pakistani people. And that, frankly, will be a mission of mine if I'm given the privilege of serving in the United States Congress, to make sure that assistance is provided and we keep the focus of Congress and the focus of our country on addressing this tragic humanitarian crisis in Pakistan due to the flooding. डॉक्टर इजाज साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज आपने रॉबर्ट जिमरमैन के लिए फंड रेजिंग की। अगर वो मुंतखब हुए तो पाक अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए क्या इकदामात करेंगे? क्योंकि मौजूदा रुकने कांग्रेस टॉम स्वाजी ने तो अभी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया था। अभी ये टॉम स्वाजी के साथ जो हम कांग्रेशनल डेलीगेट लेके गए थे, शीला जैक्सन और भी टेक्सास के लोग थे, एल ग्रीन, 3 कांग्रेसमैन थे, और उनके बाद अभी ये जो इलेक्शन नया आ रहा है टॉम स्वाजी के बाद, ये कांग्रेसमैन मोस्ट लाइकली बनेगा इसके एरिया से है, रॉबर्ट जिमरमैन। आज उसको हमने होस्ट किया। वो बड़ा फोर्थ कमिंग था। उसने कहा कि मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान जाऊंगा। दिसंबर में अपने जनवरी में मेरा ओथ है, ओथ लेने से पहले मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मुझे आप सपोर्ट करें। मैं आप कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूं, मैं इनके साथ काम करना चाहता हूं और मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहाँ पे सारा फ्लड्स की सिचुएशन देखूंगा। और ये रेगुलर कमेंटेटर है CNBC पे, MSNBC पे और CNN पे। तो वो ये कहता है कि आई विल कम एंड क्रिएट द अवेयरनेस। हमने उसको कहा कि 2 हफ्ते फ्लड की कवरेज हुई है, उसके बाद कवरेज ख़त्म हो गई है।
तो ही सेड दैट ही विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट, और वो इस पे करेगा, काम कंटिन्यू करेगा। तो वी आर होपफुल, दिस इज़ अपहिल बैटल, अपहिल चैलेंज, हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द कम्युनिटी। आज कम्युनिटी आई और उन्होंने सब ने सपोर्ट किया इसको। हमारे साथ APPAC के एक और अहम रहनुमा मौजूद हैं। आपके नज़दीक रॉबर्ट जिमरमैन से जो मुलाकात हुई है उसके नतीजे में आप कितने पुरुमीद हैं, और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को इस इलेक्शंस की कैसे तैयारी करनी चाहिए? पाकिस्तानियों को वैसे तो हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपका कैंडिडेट है जिसको आप पसंद करते हैं, अगर आपने मिड टर्म इलेक्शन में उसको वोट नहीं दिया तो फिर वो इलेक्ट नहीं होगा अपनी पोस्ट के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप डेमोक्रेट रजिस्टर हो या रिपब्लिकन रजिस्टर हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जिमरमैन जो है से जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है और हमें इस बात का बहुत यकीन है कि वो हमारे लिए बहुत फ़ाल साबित होंगे, और वो जिस कमेटी में भी जाएंगे वो पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत अच्छी तरह से वो काम करेंगे, फेवर करेंगे। जिस तरह से एनवायरमेंटल की हमने उनको फीडिंग दी है कि पाकिस्तान में 7600 ग्लेशियर्स हैं और वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और वो सारा पानी जो है वो ओशन में एंड अप होगा, जिससे पूरी दुनिया में जो है वो इसके इफ़ेक्ट जो है वो ज़ाहिर होंगे। सो ही इज़ गोइंग टू वर्क ऑन इट। सो पूरी दुनिया, ख़ासकर अमेरिका जो है वो उसके ऊपर काम करे और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से रिलीफ मिल सके। नवंबर 8 मिड टर्म इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, इस लिहाज से कि ये साल एक लोगों को जो है इलेक्शन फटीक है। इलेक्शन फटीक से हमारा जो रीडिस्ट्रिक्टिंग हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी अपने आप को समझते हैं कि तंग आए हुए हैं वो। और ये जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें एक तो लोगों का जो है एक्सपेक्टेशन ये है कि टर्न आउट जो है बहुत लो होगा। तो जहाँ तक ये मामला है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में जो है बड़ी टसल की रेस है। एक्सपेक्टेशन और ये भी है कि रिपब्लिकन जो है वो सर्टन एरियाज़ में टेक ओवर करेंगे, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो है मिनॉरिटी कम्युनिटी का वोट जो है बहुत अहम हो जाता है। इसी वजह से APPAC जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है चाह रही है कि कम्युनिटी को हम मोबिलाइज़ करें और छोटे छोटे हम इवेंट्स करके जो है ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आज वन ऑफ द लीडिंग कैंडिडेट जो कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 3 रॉबर्ट जिमरमैन के साथ जो है वो इंगेजमेंट थी, और इसमें जो है ऑनलाइन टेक्सास के ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया और कैलिफोर्निया का जो चैप्टर है उसने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये जो छोटी छोटी इंगेजमेंट है, इससे ये होगा कि हमारी कम्युनिटी को जो है एहसास आएगा कि उनका वोट अहम है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है हमेशा किसी इशू के बेस पे हुए हैं, और वो है अमूमन अमेरिका का इंटरेस्ट। लेकिन अगर यही पाकिस्तान अगर कुछ कोशिश करे और ये अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड में कन्वर्ट किया जाए, तो मेरे ख़्याल में उसके दूर नताइज हो सकते हैं और पाकिस्तान को उसमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ करने की उसके एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ होप कि पाकिस्तान और अमेरिका की, क्योंकि 70 साल से ताल्लुकात, 70-72 साल से ताल्लुकात हैं, वो ऑल ऑफ सडन यू कैन नॉट जस्ट डिसरिगार्ड और डिस्काउंट कर सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा उनके ऊपर वो उसका जो है वो असर होना चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ मजबूत करने की बेहतरी कोशिश करें, और इसमें उनका अपना फ़ायदा है। डॉक्टर एजाज अहमद साहब, आप वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते सदर बाइडेन से बैक टू बैक 2 मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? प्रेसिडेंट बाइडेन से जो बात हुई थी वो हमने मोस्टली ये करनी थी कि अभी हम रिसेंटली सेनेटर फॉरेन अफेयर्स कमेटी का जो चेयरमैन है बाब मेनेंडेज, उससे बात कर रहे थे और उसके चीफ ऑफ स्टाफ से, तो जो कि आपको पता है मोस्टली जो फॉरेन अफेयर्स की चीज़ें हैं वही वहाँ से ही होती हैं। उसने ये कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि पाकिस्तान के साथ काम करने की, और कैपिटल हिल के ऊपर हमें ऐसा कोई माहौल नहीं मिल रहा कि डजंट लुक लाइक ए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ विलिंग टू वर्क।
और it is going to be a lot of work to bring Democrat and Republican together to do something for Pakistan. USAID से 30, 40, 50 मिलियन, पहले उसने 30 दिया, फिर उसने 20 दिया, अभी 10 मिलियन और दिया, और मे बी 100 मिलियन तक चला जाए, लेकिन हम 13 बिलियन या 15 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है कि वो कैपिटल हिल या कांग्रेस से ही आएगा, और कांग्रेस में कोई इस चीज़ की विलिंग नहीं है। तो उसके लिए बाइडन से मुलाकात की थी। तो बाइडन से जब ये बात हुई तो उसको हमने ये बताया कि पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो नॉर्थ पोल के बाद सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से फ्लड इतना ज़्यादा आ रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और पाकिस्तान का इसमें कसूर नहीं है। ये सारा जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जिस तरह अमेरिका है या यूरोप है या चाइना और इंडिया नेक्स्ट डोर हैं, उनकी पोल्यूशन की वजह से ही पाकिस्तान इसमें फ्लड आ रहा है, और ये ख़त्म नहीं होने वाला। हमारे साथ APPAC के एक और अहम रुकन मौजूद हैं। आप बताइएगा कि बाइडेन शहबाज और ब्लिंकन बिलावल की मुलाकातों से पाकिस्तान को कितना माशी मफाद हासिल हो सकेगा? ये जो मीटिंग्स हुई हैं अभी पाकिस्तान की टॉप लेवल पे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि बात करने से ही फ़ायदा होता है। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि ना बात करें। तो जो हालात हैं आजकल जिस सरदमोरी पे पहुंचे हुए हैं, उसको आइस ब्रेक करने के लिए इस तरह की काफ़ी मीटिंग्स होनी चाहिए। इस लेवल पे भी होनी चाहिए, दूसरे लेवल्स पे भी होनी चाहिए, और इसको कोशिश करना चाहिए कि जितनी आइस ब्रेक हो सके। पाकिस्तान को बहुत मदद की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज जो हैं हम सबको पता है कि वो बहुत कम है। और ख़ास तौर पे मुझे एक बिलावल साहब का जो आइडिया वो पसंद आया, जो उन्होंने कहा कि जी आप हमें लोन जो है वो फॉरगिव ना करें, उसके बजाय ये करें कि यही पैसा जो हमसे लोन पे रीपेमेंट में लेना है, इसको आप स्पेंड करें पाकिस्तान में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इस तरह से वो कर्ज़ा देना भी नहीं पड़ेगा, और वो पैसा उसमें इन्वेस्ट भी हो जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी जाएगा। तो कोई भी जब मुलाकात होती है उससे फ़ायदा ही होता है, कभी मुलाकात से बात करने से नुकसान नहीं होता। डॉक्टर एजाज साहब, पाकिस्तान में तो लोग सैलाब के बाद हैरान हैं कि मैदानी इलाकों में 100 किलोमीटर तक झील कैसे बन गई। आप ये बताइएगा, क्या अमरीकी इंतजामिया भी हैरान है, या सदर जो बाइडेन को इन मौसमी तब्दीलियों का अंदाज़ा था? बाइडेन ने कहा कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है 10 या 11 साल पहले, जब हमें एक वाशिंगटन के अंदर एक बड़ी सिक्योर जगह होती है जहाँ प्रेसिडेंट को लेके जाते हैं, उसको कहते हैं टैंक। वहाँ पे मुझे और ओबामा को लेके गए थे, और उन्होंने 12 साल पहले या 11 साल पहले कहा था कि जो नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स में जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आने वाला है दुनिया को और अमेरिका को, जो इवेंचुअली अमेरिका को उसका नुकसान होएगा, वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और उसकी वजह से इतना ज़्यादा फ्लड्स आएंगे और पानी आएगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट शुरू होएगा। और उसने प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इंडोनेशिया का एक जो कैपिटल है उसको पूरे के पूरा कैपिटल को मूव करना पड़ेगा। तो इसका जो उसकी बातों से, प्रेसिडेंट की बातों से ये समझ लग रहा था कि ही नोज़ अ लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज। उसने कहा कि मैंने अभी जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है उसमें 700 या 800 बिलियन डॉलर पैसा है, और उसमें 300 प्लस जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए है। लेकिन हमारा पॉइंट ये था कि वो सारे का सारा जो पैसा है वो अमेरिका के क्लाइमेट चेंज से जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए है। तो व्हाई नॉट पुट सम मनी फॉर पाकिस्तान। तो उसके लिए प्रेसिडेंट ने कहा कि आई विल वर्क विद द कांग्रेस, मैं तुम्हें कॉल भी करूँगा। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा नंबर ले लो, एंड देन आई विल कनेक्ट एंड आई विल वर्क। लेकिन आई डोंट नो कि ही विल डू इट और नॉट, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन थी। उसके बाद हमारी जो सीरीज़ ऑफ डिस्कशन हो रही हैं रिपब्लिकन से भी, डेमोक्रेट से भी, उस हर एक बंदा जो इंश्योर करता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा काम ज़रूरत है काम करने की, लेकिन नोबडी इज़ स्टार्टिंग वर्क। अब्दुल रहमान साहब, बाइडेन इंतजामिया की जानिब से $66 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। आपके नज़दीक ये इमदाद काफ़ी है? बाइडेन की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन के इंटरेस्ट में पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया है और कुर्बानी दी है। और अमेरिकन गवर्नमेंट और जो बाइडेन गवर्नमेंट को ज़्यादा करना चाहिए सपोर्ट पाकिस्तान को, फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरीथिंग। और उनको वहाँ पे और स्पोर्ट फिज़िकल लोगों को भेजना चाहिए, लाइक
आपके रिजर्व जो हैं वहाँ पे जाने चाहिए, क्योंकि वी नीड फिजिकल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प एंड इमोशनल हेल्प। हमारे साथ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक और सरकर्दा शख्सियत मौजूद हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान जो कांटे थे, आपके नज़दीक क्या वो बिलावल ब्लिंकन की मुलाकात से दूर हो गए? अभी रिसेंट फैस में कोई 5-10 साल में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा खिंचाव और डिफरेंसेस सामने आए हैं। उसकी बुनियादी वजह उस इलाके की जो पॉलिटिक्स है उसमें, जिसमें अफ़गानिस्तान का एक फैक्टर था, उससे एक तरह का थोड़ा सा बैकलैश पैदा हुआ है यूएस के अंदर। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब पाकिस्तान एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है दिस एंड दैट, उससे यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी अमेरिकन, उसको बड़ा नुकसान पहुँचा है। और उस नुकसान को कवर करने के लिए हमें दोस्त चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो मीडिया में जा कर के हमारे केस को आगे बढ़ाएं और उसके साथ ही हम उनकी हेल्प करें उसको प्रोपेगेट करने में। तो मेरा ख्याल में ये जो इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स में हम हिस्सा ले रहे हैं और हमने बहुत सारे लोगों को अपने इश्यूज से आगाह किया है। जैसे आज हमने खुल कर के यहाँ रॉबर्ट जिमरमैन के साथ बात की और उसको ये बताया कि जनाब हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर और पाकिस्तान को एज ए कंट्री क्या इश्यूज हैं, एंड we gave him our side of his story. So now he has the both sides. He know what he has to do, and his commitment is that he will do the best he can to advance our interests in the US as well as the interests of Pakistan. आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात और मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से मजीद इशूज़ पर बात होगी। फिलहाल अपने मेज़बान ज़हूर रज़ा को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।